Good morning, children. Today, the last part of the important lesson, chemical kinetics. Today, we will see temperature dependence of the rate of a reaction. Rate of reaction कैसे temperature पे dependent होता है बेटा. सबको पता है rate of reaction temperature पे dependent होता ही है. temperature को increase या decrease करो तो it alters the rate of the reaction. Most of the chemical reactions are accelerated by increase in temperature. ठीक है, एक्सेलरेट हो जाते हैं. फॉर ए केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाई 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड. बेटा ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए आप याद रखना. ओके, इंपॉर्टेंट है. सिर्फ 10 डिग्री इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट लगभग और अप्रॉक्स डबल्ड हो जाता है. ना एक आर्हेनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दिया रेट कांस्टेंट के लिए. के इज इक्वल टू ए e raised to minus A upon RT, where what is A? A is known as Arrhenius factor, or it is also known as frequency factor, or it is also known as pre-exponential factor. R is gas constant, we know. EA means activation energy, और energy है तो unit क्या होगी? Joule per mole. Now if you notice a reaction, let me explain you. H2 plus I2 is equal to 2 moles of hydrogen iodide. ये 2 molecules of hydrogen iodide. So H2 कुछ ऐसा होगा, H और H के बीच बॉन्ड. I2 कुछ ऐसा होगा, I और I के बीच में बॉन्ड. So it is explained by Arrhenius कि this reaction can only take place only when a molecule of hydrogen and a molecule of iodine will collide to form a unstable intermediate. This is intermediate. Understood? So it is only possible that one atom या बोलो one molecule of hydrogen and one molecule of iodine will collide with each other. ठीक है, and a intermediate will form. Then only after the collision, when they will form this intermediate, then it exists for a very short time, this intermediate, and now it breaks to give 2 molecules of hydrogen iodide. इजी है. पहले H2 ले लिया, I2 ले लिया, देन इंटरमीडिएट विल फॉर्म. ये इंटरमीडिएट में क्या हुआ? 1 molecule of hydrogen and 1 molecule of iodine will collide with each other and they will form an intermediate complex that is for very short times of span, and then it will give the 2 molecules of hydrogen iodide. The energy required to form this intermediate, इस intermediate को क्या बोलते हैं बेटा? Activated complex. The energy required to form this intermediate this intermediate is also known as activated complex, and it is denoted by C, is known as activation energy. कोई एनर्जी तो चाहिए होगा ना, तो ही ये इंटरमीडिएट बनेगा. सो दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, नाउ आई विल शो यू वन ग्राफ. दैट इज this graph is this side potential energy and this side reaction coordinate. So H2 plus I2, this is the activation energy, this is activation complex, and then the final product is formed, that is 2HI, and this is delta H. Can you see children? Delta H दिख रहा है आपको? Delta H means change in energy, right? So what is said here, that this graph is plotted by plot potential energy on x-axis and reaction coordinate on y-axis. ठीक, x-axis पे क्या लिया? reaction coordinate लिया, और y-axis पे क्या लिया? potential energy लिया. ठीक है, और reaction coordinate represents the profile of energy changes. ये जो coordinate है energy change बता रहा है. ठीक है, some energy is released when the complex decomposes to form the product. कौन सा कॉम्प्लेक्स? दिस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स. ओके, सो सम एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इट गिव्स द फाइनल प्रोडक्ट. अंडरस्टूड? फाइनल हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. देन सेकेंड ग्राफ वॉज ड्रॉन, दैट इज इन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी. एक्स एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी एंड वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी यहाँ डिनोट किया गया. इसमें बताया है कि अकॉर्डिंग टू दिस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी may be described by plotting the fraction of molecule. A fraction of molecule, let me write here, fraction of molecules is given by Ne upon
एन टी, ठीक है, एन थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, ओके, एन ई अपॉन एन टी, वेयर एन ई मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ई एंड एन टी इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एन ई मीन्स क्या हो बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स with energy E, and this is NT means total number of molecules. So this will give us the fraction of molecules. The peak of the curve, ध्यान से देखना, this graph was drawn and the peak of the curve is the most probable kinetic energy. This peak is known as most probable kinetic energy. ठीक. Then third graph was drawn, that is दिस इज बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तुमको समझ में आ गया, एन ई अपॉन एन टी वर्सेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. दिस साइड काइनेटिक एनर्जी इज अगेन टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड टू टेम्परेचर्स आर देयर, वन इज टी एंड वन इज टी प्लस 10, ठीक है. तो व्हाट इट शोज, लगभग ऐसा मैंने बताने की कोशिश की है कि द एरिया गेट्स डबल्ड, ठीक है. सो एरिया शोइंग फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट एट टी प्लस 10, ये वाला एरिया डॉटेड से शो किया है. एंड दिस जो ये लाइन्स हैं, दैट इज एरिया शोइंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट टी. टी पे ये एरिया है और टी प्लस 10 पे ये एरिया है एडिशनल मॉलिक्यूल्स के लिए, ओके. सो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन. व्हाट डज इट मीन? That means when the temperature is raised, the maximum of curve moves to the higher energy value and the curve broadens out. The curve broadens out and spreads to the right such that there is greater proportion of molecule with higher energy. ठीक है. This is known as distribution curve showing the temperature dependence of a rate of reaction. नटसेल में क्या बात है, T पे ऐसा कर्व आया, T प्लस 10 पे ये कर्व ब्रॉडन हो गया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए, है ना. एरिया शोइंग द फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स, दे इंक्रीज्ड. अब ये 2-4 पॉइंट्स हमें एकदम ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलॉइड. अब जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हमने छोटे से ही पढ़ा है कि द मॉलिक्यूल स्टार्ट कोलॉइडिंग विद ईच अदर. सो फ्रैक्शन विच कोलॉइड विद एनर्जी इज ग्रेटर देन ई ए. ये क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी. The rate constant is given by AE raised to E minus EA upon RT. This factor, that is E raised to minus EA upon RT, this corresponds to the fraction of molecules that have kinetic energy greater than EA. जिनकी kinetic energy activation energy से ज़्यादा है, वो fraction of molecules are shown by E raised to minus EA upon RT. अब इनका नेचुरल लॉगरिथम ले लो. सो ln k सेम में है ना. अब ये पावर में है तो इधर नीचे आ जाएगा, लॉगरिथम लेंगे तो माइनस ए अपॉन आर टी प्लस मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस लॉग ए ln a, नेचुरल लॉगरिथम ले लिया. नाउ वन मोर ग्राफ वाज प्लॉटेड, दैट इज फॉर ln k, जो रेट कांस्टेंट का हमने नेचुरल लॉगरिथम लिया, वर्सेज 1 अपॉन टी. तो ये स्लोप की वैल्यू आई माइनस ई ए अपॉन आर और ये इंटरसेप्ट, यहाँ जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ln a. सो फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन इट इज़ फाउंड दैट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ध्यान रखना, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, या तो टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन. यानी इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज. इफ एक्टिवेशन इन एनर्जी इज डिक्रीज, देन ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज एंड एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन रेट कॉन्स्टेंट. सो एट टेम्परेचर T1 बेटा, अब ध्यान से देखना, ये हमने एक फार्मूला डिराइव करना है एंड दैट फार्मूला वी विल यूज इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सो एट टेम्परेचर T1 ln K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर T1, वही फार्मूला लिख दिया, प्लस ln A, फर्स्ट इक्वेशन. एट टेम्परेचर T2 ln K2 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर T2 प्लस ln A, तो सेम है, वेयर A तुमको पता ही है कांस्टेंट है, K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट है. दो तरह के टेम्परेचर हैं, दैट इज T1 एंड T2. नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. सो वी विल राइट, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल राइट ln K2 माइनस ln K1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस साइन है तो ई ए अपॉन आर T1
माइनस EA अपॉन RT2। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें से 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 पहले लिखेंगे, 2 माइनस 1 तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पहले आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। इज इक्वल टू देयरफॉर वी विल राइट, अब ln है तो K2 अपॉन K1 कर दें। सो वी विल राइट ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R कॉमन ले लें, EA अपॉन R इज कॉमन, बचा क्या बेटा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अंडरस्टूड। ln K2 अपॉन K1 माइनस है इसलिए अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस है ना। देन कम्स, अब इसको लॉग कर दें तो लॉग, देयरफॉर लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R तो अपनी जगह पे ही रहेगा, R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T2, ये लिख दिया। दिस इज द इक्वेशन। सो लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन, अब इसमें इसको आगे भी अपन कर सकते हैं, T2 T1 LCM लेकर के लिख सकते हो। सो मैं शुड आई राइट हियर, देयरफॉर लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। ठीक है, और T1 T2 इसका एलसीएम हो गया, T1 T2 ऊपर क्या आ जाएगा बेटा T2 माइनस T1 माइनस T1। सो दिस इज आवर फॉर्मूला टू फाइंड द रेट कांस्टेंट। ठीक है, दिस वी विल यूज इन न्यूमेरिकल। By using this formula only, I will explain you the solved example 4.10। एक बात ध्यान में रखना बेटा, ये क्वेश्चंस हर साल एक साल छोड़ करके आते ही हैं। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज या दिस केमिकल काइनेटिक्स में आपको ये सब याद रखना ही है। ओके, तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 500 केल्विन एंड 700 केल्विन। दो टेम्परेचर है T1 T2, मिल गया सबको, एंड K1 K2 यू गॉट बेटा, सेकेंड इनवर्स यानी K1 एंड K2. So we have to calculate EA and A. So what formula I will use? Solution के लिए I will write here log, same formula, K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon, या T2 माइनस T1 कर दें, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ओके, सो हियर आई विल राइट लॉग, देयरफॉर लॉग 0.07, K2 कितना है हमारा 0.07, सो 0.07 अपॉन 0.02 इज इक्वल टू EA अपॉन, EA तो फाइंड करना है हमें, तो ये रह जाएगा अपॉन 2.303 इंटू R की वैल्यू क्या होगी 8.314। ओके, इंटू इसको इधर रख दें ऐसा, ये अपॉन 2.303 इंटू R। T2 क्या है बेटा हमारा, T2 इज गिवन दैट इज 700, सो 700 माइनस 500, T1 इज 500 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 500। ओके, सो यू विल राइट हियर देयरफॉर log 0.07 डिवाइडेड बाय 0.02। सो जब तुम लॉग लोगे तो इट विल बिकम 0.544। लेट मी शो यू हाउ। नाउ डेसिमल को कैंसिल कर दें, ये डेसिमल हटा दो, ये डेसिमल हटा दो, 7/2 यानी log 3.5। ठीक है, इज इक्वल टू EA अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दें, EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 700 माइनस 500 इज 200 डिवाइडेड बाय 7 5 जा 35, सो 35 पे 4 0, 35 पे 4 0,
सो 4 0 कर दिया, 2 0 कैंसिल हो गया. ओके, सो इट विल बी रिटन एज लॉग 3.5 को कैसे लोगे, 35 को ज़ीरो में देखोगे लॉग टेबल में, तो इट विल बिकम 5441. डेसिमल से पहले एक प्लेस है तो 1 - 1 इज़ 0, सो 0.5441 ऐसा आएगा. इज इक्वल टू, इट विल बी रिटन एज व्हेन यू विल सॉल्व EA into, so EA into 2 upon 2.303 into 8.314 into 3500. Therefore EA is equal to 0.5441 into 2.303 into 8.314 into 3500 divided by 2. So when I have divided, it has come 18 to 31.4. Therefore EA is equal to 18 230.8. मेरा 31 आया है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. 230.8 इज ऑल्सो 231. दोनों वैल्यू रख के रख सकते हैं. सो EA मिल गया, एक्टिवेशन एनर्जी वी गॉट. और यू कैन ऑल्सो राइट द आंसर 18231 जूल. आगे बेटा समझ में. नाउ K फाइंड करना. सो K का फॉर्मूला क्या बेटा, K इज इक्वल टू A E रेज टू माइनस EA अपॉन RT. अभी पढ़ा हमने, तो लॉग ले लें. सो लॉग K इज इक्वल टू लिखेंगे लॉग A, ओके, माइनस ये नीचे आ जाएगा माइनस EA अपॉन RT. सो लॉग K मतलब लॉग K की वैल्यू क्या है बेटा, फर्स्ट वाला कोई एक ले सकते हैं दोनों में से. तो फर्स्ट K ले लिया, K1 दैट इज़ 0.02 सेकेंड. तो लॉग 0.02 इज इक्वल टू लॉग A, तो फाइंड ही करना है हमें. सो लॉग A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आई, 18230.8 डिवाइडेड बाई व्हाट इज़ आवर R, 8.314. 8.314 इंटू 2.303 इंटू नेचुरल लॉगरिदम 8.314 इंटू T, टेम्परेचर क्या है 500. ठीक है, ln लगाया ना इसमें. देयरफॉर वी विल राइट हियर लॉग 0.02 की वैल्यू क्या आती है बेटा, इसको तुम सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम लॉग A माइनस 18230.8 डिवाइडेड बाई 9573.571. ओके, इज इक्वल टू लॉग 0.02 की वैल्यू आती है -1.699. माइनस कैसे करेंगे, 2 अपॉन 100 कर देंगे, log 2 माइनस 2 log 10, ऐसा log 2 अपॉन 100 करके कर सकते हो. -1.699 इसकी वैल्यू आई. देयरफॉर वी विल राइट, देयरफॉर इसको जब डिवाइड करते हैं तो -1.699 इज इक्वल टू लॉग A माइनस 1.904. 1.904 इसको उठा के साइड ले आओ तो हो जाएगा -1.699 प्लस 1.904 इज इक्वल टू लॉग A. Therefore A is equal to एंटी लॉग इसमें से इसको माइनस कर दो तो आ गया, माइनस करने पे 0.205. एंटी लॉग 0.205. सो एंटी लॉग के टेबल में जाओ और 0.20 को 5 में देखो तो इट विल गिव यू आंसर 1.603. This will be our answer. A is equal to 1.603. Understood beta? आगे clear? Now we will go for effect of catalyst on in chemical kinetics. So a catalyst क्या है बेटा? Catalyst is a substance which alters the rate of reaction
without itself going any permanent chemical change. It does not take part in the chemical reaction directly, it only changes the rate of the reaction. So they provide alternate, कैसे change करते हैं? They provide the alternate pathway or reaction mechanism by reducing the activation energy between reactant and product and lower the potential energy barriers. अब इसमें कुछ MCQ के लिए points याद रखना है हमें. Lower the activation energy, faster will be the rate of reaction. पहले भी हमने पढ़ा. A catalyst does not alter the delta G gives energy of a reaction. याद रखना बेटा ये सब points. सब MCQ के लिए मैंने एरो डाल डाल के लिखे हैं, ठीक है ना. For MCQ लिख दो, for MCQs. Then a catalyst does not alter the delta G, यानी gives energy of a reaction. It catalyzes the spontaneous reaction but does not catalyze the non-spontaneous reaction. ठीक है. It does not change the equilibrium constant of a reaction. ध्यान रखना है. It does not change the equilibrium. Let me show you this graph from the textbook. This is the original without catalyst. This graph is there. Product is formed. एंड ये मैंने बताया ना अल्टरनेट मैकेनिज्म या अल्टरनेट पाथवे ढूंढ लेते हैं. सो रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट ये डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है. सो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिड्यूस्ड एंड प्रोडक्ट फॉर्म विल बी देयर. ठीक है. सो दिस इज द यूज ऑफ कैटलिस्ट. I said you that it does not change the equilibrium constant of a reaction, but it actually क्या करता है, it helps in attaining the equilibrium state faster. उसके चलते equilibrium जल्दी establish होता है, ये ध्यान में रखना. It catalyzes the forward as well as backward reaction to the same extent so that the equilibrium state remains same, but equilibrium जल्दी पहुँच जाता है. Equilibrium state reached faster. Now next topic is कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन. कोलिजन क्या होता है बेटा? गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं तो आपस में कोलॉइड करते ही रहते हैं. सो मैक्स ट्रॉड एंड लेविस दे गेव दिस थियोरी. दिस इज बेस्ड अपॉन द काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस. काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस में क्या पढ़ा था हमने? गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एंड दे आर कोलॉइड विद ईच अदर विद सम एनर्जी. सो द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल Z. एक रिएक्शन है दैट इज A + B = टू प्रोडक्ट. हियर रेट इज गिवन बाय Z. फ्रीक्वेंसी फैक्टर ले लिया बेटा. Z AB e⁻ E/RT वेयर Z AB क्या है बेटा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ A क्या होता है? दोनों रिएक्टेंट है AB, तो दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है. सो Z AB इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स A and B and where e⁻ E/RT is fraction of molecules with energy equal or greater than EA. अब एक केमिकल ऐसा शो करते हैं दैट इज इनका ओरिएंटेशन भी बहुत ज़रूरी है बेटा प्रोडक्ट फॉर्म करने में. लाइक एक रिएक्शन देखो अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है CH3Br. ये क्या हो गया बेटा? ब्रोमोमीथेन प्लस OH. ठीक है. तो इनका रिएक्शन हुआ तो ये बनता है मीथेनॉल दैट इज CH3OH प्लस Br. ओके. सो OH से मीथेनॉल. बट ये हमें अगर ओरिएंटेशन सही नहीं हो तो नहीं बनेगा. लेट मी शो यू. द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लीड टू बॉन्ड फॉर्मेशन वाइल इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन विल मेक सिंपली बाउंस बैक एंड नो प्रोडक्ट विल फॉर्म. व्हाट डज इट मीन? दिस इज CH3. ठीक है. CH3OH Br सॉरी CH3Br प्लस अब Br बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता है ना, ऐसा था अपन ने पढ़ा था ना. डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस कार्बोकेटायन ऐसा बनता है. तो इसने इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो इट हैज़ पुल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ मेकिंग द मॉलिक्यूल पोलर प्लस OH माइनस. सो OH O के ऊपर माइनस साइन आएगा. देयरफॉर अब दो तरह के ओरिएंटेशन होंगे. यू सी CH3 एंड ये Br डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस. अब इसमें OH ज्वाइन होना है. OH के ऊपर कैसा चार्ज है बेटा? माइनस. तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ. नो प्रोडक्ट. इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन. सो नो प्रोडक्ट. whereas if it attaches like this CH3 अपनी जगह कर दो H3
बी आर, ठीक है, ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस, प्लस ओ एच, ओ एच ओ के ऊपर माइनस साइन। सो अगर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा बेटा तो ये ऐसा बनेगा, इंटरमीडिएट पहले बनेगा, दैट इज सी, याद आया न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ओ एच बी आर, ठीक है, और एक एच यहाँ डाल दो, एक इधर डाल दो, एक इधर डाल दो, करेक्ट। ये डॉटेड लाइन से शो करेंगे क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कार्बन की, याद आया तुम लोगों को पढ़ाया था SN1 SN2 रिएक्शंस। सो ये डॉटेड लाइन से शो कर दिया, क्यों शो किया, बिकॉज 5 वैलेंसी तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसको भी ऐसा ऐसा शो कर दो। दिस इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। अब इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा, ये भी माइनस चार्ज है, डेल्टा माइनस चार्ज, और कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज। यू अंडरस्टूड, दोनों ज्वाइन हो गए, एक इंटरमीडिएट बना। नाउ इट विल फॉर्म, ये बी आर सेपरेट हो जाएगा, सो इट विल बिकम सी, ध्यान से देखना, सी ओ एच CH3, CH3OH, methanol, plus Br is separated. So this is proper orientation, and so methanol is formed. This is to account for effective collisions, another factor, एक P नाम का factor किया, P for, ऐसा लिख दें, factor P for effective collisions. So what will be there? Effective collisions. Rate is given by, rate is equal to P Z AB समझ में आया, दोनों रिएक्टेंट AB e raised to माइनस EA अपॉन RT। Z क्या था बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, AB क्या है, उसके रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और e raised to माइनस EA अपॉन RT हमने पढ़ ही लिया है। सो नाउ दिस P is there. P is known as probability or steric factor. P is steric factor or probability factor. P मालूम हो गया, and it takes the account the fact that in a collision molecules must be properly oriented. अगर improper orientation होगा तो you see product will not form. And this is the proper orientation. Let me write here, proper orientation. Now as usual, every theory has some drawbacks. So collision theory also has certain drawbacks, as it considers atoms and molecules to be hard spheres and ignores their structural aspect. So every theory has some problems. Now in this chapter lots of numerical problems are there, children, so you have to solve them. And every day, tomorrow I will start the new lesson, and every day I will send you some PDF. If any question you do not understand, please tell me, I will solve the question. Thank you.